Conquer the climb. Conquer Civils, your definitive guide to UPSC success. Hi, good afternoon, everyone. My name is Priya Meena. I have secured AIR 833 this year in UPSC CSE examination. And first of all, I would like to thank UPSC Time for giving me this opportunity and this platform to share my strategy and my journey. So I'll start with the session right now. So firstly, a brief introduction about myself. As I mentioned, my name is Priya Meena, and this was my 6th attempt at UPSC. I have previously given 3 interviews in my 2nd, 4th, and this was my 6th attempt. And I could not clear prelims in my 1st, 3rd, and 5th attempt. So it has been a long journey of 7 years. And so I would like to focus on prelim strategy, and then I'll tell about what were the learnings when I couldn't clear prelims. Then after that, we'll go on to the sources which I referred for prelims and mains both. And finally, we'll look into the personality test aspects. Further, we'll also look into how we should handle stress and anxiety during this preparation. And in the end, I would also talk about Plan B because I'm already working in RBI as a Grade B manager. So we'll focus on that as well, that why Plan B is important and when should we start preparing for Plan B. Okay. So I am a chemical engineering graduate, dual degree from IIT Delhi. Then post that, I worked for around 1 year in a software developing company as a full stack developer. I took that job because I wanted to fund my own education. I wanted to fund my UPSC preparation on my own. So that was my aim while doing that job. Further, from 2019, I started giving my UPSC attempt. And in my first attempt, I could not clear prelims. I missed the prelims by 2 marks. But the learning which I took from that attempt was that my basic sources were not very well covered in that attempt. I had mostly focused on the current affairs parts. Secondly, my mains preparation was also not very great at that time, and that I got to know in my 2020 attempt when I could clear prelims, but was short of many marks in my mains, GS and sociology. Then in 2020, that was my second attempt. Usme I could clear the prelims and I reached till the interview stage. However, I missed the final list by 11 marks. The learnings which I got from my second attempt, reaching interview my second attempt was a great thing, but the learning which I got was that I could not finish my papers. My GS papers were not finished. I literally left many pages in my GS answers. So 100 marks ka GS I couldn't attempt. And sociology also, I had done just the surface level ka preparation. So that was a learning that my preparation was not very great. Okay, I'll speak in Hindi. Then, but at that time, उस समय मुझे इंटरव्यू में काफी अच्छा स्कोर मिला था 180 एंड इस वजह से जो मेरा फाइनल मिस हुआ था वो 10 मार्क्स का ही था. तो मुझे लगा था नेक्स्ट अटेम्प्ट दैट विल बी माय 2021 अटेम्प्ट, उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी. तो मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया. बट इस बार जो था प्रीलिम्स वो 2020 के रिजल्ट के जस्ट 15 दिन बाद ही था प्रीलिम्स. और उस टाइम मैं इतने लो फेज में थी, माय मेंटल हेल्थ वाज नॉट ग्रेट, आई कुडंट study well, and during examination hall मैं बहुत confident नहीं थी अपने आप को लेके, so I couldn't clear prelims at that time. My medium was English throughout the preparation. So 2021 attempt में I could not clear prelims, but at that time I had decided कि since I've already given 3 attempts, 3 attempt में दे चुकी हूँ और UPSC का as you know कोई भरोसा नहीं है, मेंस में लिख चुकी हूँ. तो मैंने उस टाइम सोचा कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मुझे प्लान बी पे फोकस करना चाहिए. प्लान बी से मेरा मतलब ये था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग गई थी 2021 के बाद. आईआईटी से ग्रेजुएट थी, जॉब खुद छोड़ी थी, इंटरव्यू में फेल कर गई थी, तो बहुत ज्यादा लो फेज था 2021 में मेरा. सो मुझे लगा कि इस टाइम मुझे प्लान बी पे फोकस करना चाहिए, एंड दैट आई डिड. उस समय मैंने IB-ACIO का एग्जाम लिखा था, फिर मैंने SBI PO का और IBPS PO, ये तीनों एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे 2021 में. फिर मैंने तीनों एग्जाम से एक्सटेंशन ले ली थी 2022 के अटेम्प्ट के लिए. देन 2022 का अटेम्प्ट आया, दैट वाज माय 4th अटेम्प्ट, एंड इसमें अगेन आई कुड क्लियर प्रीलिम्स विद गुड मार्क्स. CSAT कभी कोई इशू रहा नहीं अभी तक. और उसके बाद 2022 में अगेन प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ,
एंड मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची। अब यहाँ पे ये ट्विस्ट आया कि इस बार इंटरव्यू में मुझे पिछले साल से इस साल 20 नंबर कम मिले। 160 मेरा स्कोर था इंटरव्यू का एंड मैंने फाइनल लिस्ट मिस कर दी 5 नंबर से। सो बहुत अगेन इट वाज अ डिसहार्टनिंग फेज कि सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रही हूँ एंड मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। बट फिर मैंने एनालाइज किया अगेन अब मैं हमेशा मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है कि अगर मैं किसी स्टेज पे फेल कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या सीखा है वहां से या और क्या मैं बेटर कर सकती हूँ। तो उस स्टेज पे मैंने ये सीखा कि अगेन मेरे सोशियोलॉजी स्कोर्स अच्छे नहीं थे, इंटरव्यू में मैंने गंदा परफॉर्म किया था एंड तो यहाँ मुझे इंप्रूव करने की जरूरत थी दोनों स्टेजेस पे, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये ना हो। सोशियोलॉजी में मेरा स्कोर दोनों बार अभी तक 224 223 रहा था, तो ऑप्शनल वाज अ बिग हर्डल फॉर मी अपने शुरू के अटेम्प्ट्स में। देन उसके बाद इस साल मैंने जो मिस की लिस्ट वो 5 नंबर से थी, फिर मैं लिस्ट पे नाम नहीं आ पाया। मुझे लगा कोई बात नहीं, 2023 का अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, बट शायद भगवान को नहीं चाहिए था कि 2023 में मैं एग्जाम लिखूं। तो 2023 में मैंने सी सैट में फेल किया and that came as a shock for me because isse pehle CSAT was never an issue for me. I had always been a great student in maths. I am good with comprehension as well, but I don't know what happened during the CSAT session. I could not solve many questions 2023 mein because my comfort areas were not PNC and number system. एंड इससे पहले मैं हमेशा बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी, रीजनिंग के कर लिए या सिलॉजिज्म कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। बट इस साल आपको पता है 2023 का सीसैट कैसा आया था एंड मुझे उस साल 65 मार्क्स मिले थे सीसैट में, सो आई कुडंट क्लियर सीसैट। अगेन अ वेरी लो फेज केम इनटू माय लाइफ एंड आई वाज लाइक दिस 5 अटेम्प्ट्स आई हैव गिवन, नो जॉब, नथिंग। सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई में मैं अभी एज अ ग्रेड बी मैनेजर जॉब कर रही हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली कि हाँ मुझे भी आरबीआई का एग्जाम दे देना चाहिए। मैंने डेडिकेटेडली आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया 2023 में एंड लकीली मैं आरबीआई में मेरा एग्जामिनेशन सेलेक्ट हो भी गया। एंड 2023 में एक और अच्छी चीज हुई कि 2022 के मार्क्स के हिसाब से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए चुना गया। तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया था एंड मुझे वहां पे भी जॉब मिल गई थी। तो 6 महीना मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब किया एंड उसके बाद क्योंकि मैं आरबीआई में सेलेक्ट हो गई थी तो मैंने आरबीआई में अपना जॉब कंटिन्यू किया फ्रॉम अप्रैल 2024 एंड आई एम स्टिल वर्किंग इन आरबीआई। सो जो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, जो मेरा लेटेस्ट अटेम्प्ट था 2024 वाला जिसमें मैंने रैंक प्राप्त की है 833, ये मैंने फुल टाइम किया था विद माय जॉब। सो अब मैं आप लोगों से अपने सोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी शेयर कर लेती हूँ कि क्या मैंने किया था। सो लर्निंग जैसे मैंने आपको बता दी कि आपको बेसिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, आप करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा था कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मैं अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग रखूंगी और एग्जाम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी बेसिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सेकेंडली काम माइंड बहुत जरूरी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आपके सामने आंसर होता है, बट अगर आप हड़बड़ा रहे हैं या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको लग रहा है अरे मैंने तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की या मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स नहीं दिए हैं या पीवाईक्यूज अच्छे से नहीं किए हैं, तो ट्रस्ट मी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप मेहनत कीजिए एग्जाम वाले दिन तक एंड भरोसा रखिए उस मेहनत पर कि करेंगे आप अच्छा। नेक्स्ट, एवरी अटेम्प्ट को हमें फर्स्ट और फ्रेश अटेम्प्ट की तरह लेना चाहिए। ये गलती मैंने अपने चौथे अटेम्प्ट में की थी 2022 में, जब मुझे लगता था कि मैं 4 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ और बहुत बैगेज मैंने खुद के दिमाग में ले लिया था। तो वो हमें नहीं करना है। फ्रेश अटेम्प्ट की तरह इसलिए भी देखना है, जैसे सीसैट था, मैं हमेशा कभी सीसैट प्रिपेयर नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था सीसैट इज अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस फॉर मी, बट पैटर्न चेंज हो रहा था। 2022 में भी सीसैट मुश्किल आया था, तो मुझे उस टाइम पे ये लर्निंग मिली कि सीसैट को मैं लाइटली नहीं ले सकती, मुझे सीसैट भी करना पड़ेगा। देन प्रीलिम्स के 1-1.5 महीना पहले आप लोगों को फुल लेंथ प्रैक्टिस कर लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप किसी भी एक कोचिंग का सेक्शनल कर लीजिए, मैं वो ज्यादातर विजन आईएएस का किया करती थी। एंड अगेन नेक्स्ट आपको करना है अलग अलग कोचिंग से आप फुल लेंथ करें, क्योंकि अगर आप एक ही कोचिंग का फुल लेंथ करने लगेंगे ना तो उससे ये होगा कि आपका माइंडसेट उसी हिसाब से काम करने लगेगा। और हमें वहां पे कोचिंग का आंसर सॉल्व नहीं करना है, हमें यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो मेरा ये अटेम्प्ट रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट कोचिंग के पेपर कर सकूं। उससे क्या होता था कि आपके एरियाज भी अलग अलग कवर हो जाते थे, डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग आपको पता चलता था। एंड अगर आप ऑल इंडिया मॉक्स देंगे फ्री वाले अवेलेबल, तो उससे आपको भी पता चल जाता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो चीजें जरूरी हैं। सीसैट का जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्री सोर्सेज से सीसैट कर सकते हैं प्रिपेयर। देन सेकेंड, सो ये है हमारा कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए हमारी। अब हम सोर्सेज पे आते हैं।
पहला वुड बी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपको बहुत डिलिजेंटली पढ़ाई करनी है न्यूज़पेपर से। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर आपको एक तो अवेयर सिटीज़न बनाता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देंगे, जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशन जो हम बात करते हैं, वो कहाँ से अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो आपकी न्यूज़पेपर से ही आएगी। सेकेंडली, प्रीलिम्स में वो इसलिए हेल्प करता है क्योंकि बहुत टॉपिक्स हैं जो बार-बार रिपीट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे एग्जांपल्स आएंगे कि यहाँ यूज़ हुआ है, हेल्थ में यूज़ हुआ है, एजुकेशन में यूज़ हुआ है। तो जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो जैसे आजकल काफ़ी कोचिंग वाले बताते हैं कि ऑल ऑफ द अबव कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे भी यू हैव टू पुट योर ब्रेन्स कि आप क्या आंसर मार्क कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, एस्से के लिए बहुत ज़रूरी है, जीएस में मल्टी डायमेंशन आंसर लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी एंड होलिस्टिक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको अब सोर्सेज पे आते हैं हम, प्रीलिम्स के सोर्सेज पे। पहले अगेन एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि प्रीलिम्स मेंस की बहुत अलग पढ़ाई नहीं होती है। सब्जेक्ट आपको वही पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग आपको वैसे ही डेवलप करनी है, बट प्रीलिम्स में आपको सामने आपके आंसर है, तो आपको एनालाइज करना है कि मोस्ट सूटेड आंसर क्या है। मेंस में हो सकता है वही जो 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, वो चारों के चारों आप मेंस में लिखोगे, बट प्रीलिम्स में एक आंसर सही होता है। तो वो अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझने की जरूरत है इस चीज के अंदर कि यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछता है, और मोस्ट सूटेड आंसर की तरफ हमें जाना चाहिए, एंड वो प्रैक्टिस से ही आएगा आपका। सो सोर्सेज पे जाते हैं। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं, एंड पीवाईक्यूज करने के लिए मैंने एक बुक रेफर की थी, यूपीएससी सिंप्लीफाइड बाय सौरभ कुमार। वो आई थिंक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं, एंड वो जो पीवाईक्यूज उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं वो है बेस्ड ऑन ईयर प्लस सब्जेक्ट प्लस टॉपिक। तो बहुत ही ग्रेन्ड तरीके से उन्होंने अपनी बुक लिखी है, बहुत ही ग्रेन तरीके से उन्होंने बुक लिखी है। तो आप जब वो उठाएंगे टॉपिक, कि जैसे आपने मिडिवल हिस्ट्री उठा लिया या आपने ज्योग्राफी उठा लिया, तो उसमें साइक्लोन के क्वेश्चंस अलग होंगे, सुनामी के क्वेश्चंस अलग होंगे, वॉल्केनोज के क्वेश्चंस अलग होंगे। तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, एंड किस तरह से यूपीएससी सवाल पूछता है। एंड वो बुक जब आप करेंगे 9 बार, तो आपको रियलाइज होगा कितने थीम्स जो हैं वो यूपीएससी रिपीट करता है, टॉपिक नहीं थीम्स। तो वो आपको उस बुक से समझ आएगा। वो बुक मेरे लिए तो मुझे लगता है बहुत ही ऐसे रामबाण की तरह काम किया उस किताब ने मेरे लिए प्रीलिम्स में। तो वो किताब पीवाईक्यू के लिए बहुत अच्छी है। अब हम सोर्सेज पे आते हैं। पहला वुड बी हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु की जो स्टेट की बुक्स हैं वो रेफर की थी, फॉर एंशिएंट मिडीवियल एंड आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। उससे आर्ट एंड कल्चर सॉल्व हो जाता है। इस साल का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट उन तमिलनाडु की किताबों से सॉल्व हो रहे हैं। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम रेफर की थी, हमेशा से स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बिपिन चंद्रा मैंने नहीं पढ़ी है। स्पेक्ट्रम पे ही मैंने फोकस रखा है और मैं वही रिवाइज करती थी हमेशा। एंड हिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं तमिलनाडु बुक में एटलीस्ट जितना है उतना एंशिएंट मिडीवल कर लूं, एंड स्पेक्ट्रम में आई यूज्ड टू डू वेरी डिलिजेंटली फॉर मॉडर्न। एंड आर्ट एंड कल्चर की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो भी मैंने सरफेस लेवल पे अपने शुरू के अटेम्प्ट्स में देखी थी। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में देखा है, बट मैंने शुरू के अटेम्प्ट्स में वो देखी थी किताब। नेक्स्ट वुड बी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए राजतनिल मैम के नोट्स वीडियो अवेलेबल है मृणाल पटेल सर के यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैम के वीडियोस देखे थे और उनसे नोट्स बना लिए थे। तो मैं क्या करती थी, वो नोट्स हर साल में रिवाइज करती थी, साथ में 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी। वो मेरा बस ज्योग्राफी का सोर्स रहता था, उसके अलावा मैंने ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं किया। एंड ट्रस्ट मी, वो वीडियोस इतने अच्छे हैं, वो बहुत पुराने वीडियोस हैं, बट सिंस हमें पता है ज्योग्राफी इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट, तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से, ल्यूसिड तरीके से मैम ने वो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको समझ आएगा, जैसे अलग अलग जो चल रहा है, हीट वेव्स चल रहे हैं, या फिर AMOC होता है हमारा, अटलांटिक मेरिडोनियल ऑसिलेशन सर्कुलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सब आपका न्यूज़पेपर में कभी ना कभी कवर अप होता रहता है, तो उससे आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो वो आप करते रहिएगा। प्लस विजन में मैपिंग का एक पॉइंट आता है एंड में, विजन की जो मंथली मैगजीन्स होती है वहां से आपकी मैपिंग कवर हो जाएगी। तो वो आपको मंथली करना है, आप ऐसे एक साथ मत रखिएगा कि मैं एंड में करूंगी। आप एंड में करेंगे वो बहुत कुछ हो जाता है, उस टाइम आप नहीं कर पाते हैं। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप अपना विजन की मैगजीन लेके बैठेंगे तो प्लीज ट्राई टू डू मैपिंग उसी समय, हर मंथ का एक साथ ही कीजिएगा। नेक्स्ट वुड बी पॉलिटी। पॉलिटी के लिए हम सबको पता है लक्ष्मीकांत, मैंने हमेशा से लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है और उसी को मल्टीपल रिवीजन किया है। एंड में तो ऐसा हो गया था कि जो हमारे वो कंपैरिजन वाले चैप्टर्स है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, तो मैं क्या करती थी, प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है उसके सामने जो व्हाइट पेज है वहीं पे आई यूज्ड टू ड्रॉ ऐसे लाइन बीच में, और गवर्नर प्रेसिडेंट में जो भी डिफरेंसेस है वो मैंने वहां लिख लिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
में जो डिफरेंसेस है वो वहीं लिख लिए, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर में जो डिफरेंस है वहीं, ताकि मुझे वो फिर से बुक रिवाइज ना करनी पड़े। बट अगेन वो तब ही होगा जब आपने बहुत सारे मल्टीपल रिविजन्स किए। अगर आप शुरू में ही ये बना लेंगे तो फिर उसका उतना फायदा होगा नहीं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत डिलीजेंटली मृणाल सर के लेक्चर्स देखे हैं, तो वो देखे हैं, प्लस उसके अलावा जो भी उनकी विन सीरीज आती थी वो मैंने देखी है बहुत अच्छे से। तो मृणाल सर वाज वन शॉर्ट सोल्यूशन फॉर मी फॉर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वुड बी एनवायरनमेंट। अब सिंस मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2018 में, तो उस समय अन अकेडमी में रोमन सैनी सर के एनवायरनमेंट के कुछ लेक्चर्स थे जो उन्होंने 3-4 बनाए थे, उनके मैंने नोट्स बना लिए थे, तो वो मैंने देखे हैं। प्लस थोड़े साल बाद कोर्सावी करके एक चैनल आया था, विमल राठौर सर हैं, उन्होंने बनाया था, वो भी उन्होंने फिर अन अकेडमी को दे दिया था। तो विमल राठौर सर ने एक एनवायरनमेंट का प्रॉपर कोर्स करवाया था 20-25 लेक्चर्स का, दैट वाज फ्रीली अवेलेबल। आई डोंट नो अभी वो अवेलेबल है या नहीं है, बट उसके अगेन मैंने नोट्स बना लिए थे। तो ये दोनों नोट्स मेरे बेस की तरह काम करते थे। मैंने शंकर आईएएस से पढ़ना शुरू किया था, बट वो मुझे बहुत बुक हैवी लगी थी, और कॉन्सेप्ट्स मुझे ऐसा लग रहा था मैं वीडियो से हमेशा बहुत बेटर समझ पाती हूँ चीजों को रादर देन बुक्स। तो वो जो नोट्स है मेरे विमल राठौर सर के एंड रोमन सैनी सर के, वो एज अ बेस काम किए, एंड उसके ऊपर फिर मैंने शंकर आईएस से जो मुझे लगा, शंकर आईएस की एनवायरनमेंट की बुकलेट है, कि मुझे लगा जो भी चीज मुझे मिसिंग है या नहीं आ रही है वो मैंने उससे कर लिया। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, न्यूज़पेपर एंड विजन की मैगजीन मैं मंथली क्या करती थी, तो वो आपको करनी है। साइंस एंड टेक के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया, न्यूज़पेपर एंड जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन थी उसी को मैं कवर अप करती थी। एंड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा भी लगता था, तो न्यूज़पेपर से मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मतलब मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो वो वाला पार्ट मेरा कवर्ड था। अब विजन मैगजीन को कैसे पढ़ना है, जिस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो शुरू में जब आप विजन की, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो 5-6 साल की रही है, तो बहुत टॉपिक्स ऐसे होते थे जो रिपीटेड होते थे, तो मुझे उनके लिए फिर से वो टॉपिक पढ़ने के लिए पूरा टाइम नहीं लगता था। तो मैं सिर्फ उसमें जो नई इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ उतना ही करती थी। आपको क्या करना है, हर महीने जैसे ही विजन की मंथली मैगजीन आएगी आपको वो पढ़नी है डिलीजेंटली, बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको वो, क्योंकि उससे क्या है, आप बुक से जो चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे आपने लक्ष्मीकांत में गवर्नर का टॉपिक पढ़ लिया, या आपने स्टेट या सेंटर के रिलेशंस पढ़ लिए, पर जब आप वो मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा गवर्नर अपनी ऐसी पावर भी यूज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर, एंड उसके लाइव एग्जांपल आपको मैगजीन्स में दिखेंगे। तो इससे क्या है, जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज थी वो प्रैक्टिकलिटी में आपको दिखेगी, अच्छा हाँ तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है, केरला में ऐसा हो रहा है, पंजाब में ऐसा हो रहा है, तो उससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा। तो मंथली मैगजीन उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इस अटेम्प्ट में एंड पिछले अटेम्प्ट में मैंने एक चीज जो बदल दी थी वो ये थी कि विजन मंथली मैगजीन को मैं पूरा तो पढ़ती थी, लेकिन मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे प्रीलिम्स स्पेसिफिक। उन नोट्स में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होती थी जो मुझे न्यू लगती थी, जैसे कि, और वो नोट्स फिर मुझे हेल्प करते थे अपनी मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए। जैसे अगर इंटरस्टेट रिलेशंस की बात आई है, और अगर वहां पे गवर्नर और सीएम का कुछ टसल चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो लाइव एग्जांपल आपको विजन मैगजीन में मिल जाएंगे कि अच्छा केरला के गवर्नर ने ऐसा किया है, या तमिलनाडु के सीएम ने ऐसा किया है, या कुछ जजमेंट्स होंगे जो मेंशन होंगे, तो उनको मैं नोट कर लेती थी। वो मेरे को प्रीलिम्स में हेल्प करते थे कि मुझे पता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लक्ष्मीकांत से फिर से जाके एक बार इंटरस्टेट रिलेशंस देखने हैं, तो वो आई यूज्ड टू डू। देन एंड देन ये जो मटेरियल है जो मैंने अभी शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, ये मेरे को एज अ वैल्यू एडिशन हेल्प करते थे इन माय मेंस प्रिपरेशन। तो ये आपको करना है। सेकेंडली, अगर आपका शुरू का अटेम्प्ट है तो आई विल से कि आपको विजन मैगजीन को एटलीस्ट 2 या 3 बार रिवाइज करना ही है, ताकि वो इंटरनलाइज कर पाओ। एंड वंस यू विल इंटरनलाइज, तो जब आप नेक्स्ट ईयर विजन पढ़ेंगे, होपफुली आपको ना पढ़ना पड़े, एक ही बारी में आप लोगों का हो जाए, गुड लक टू दैट। बट अगर आपको पढ़ना पड़े तो वो आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी, फिर आपका वो ऑलरेडी काफी चीजें कवर्ड है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसके अंदर। अब ये तो पढ़ने की बात आ गई, और मैंने ये भी बात कर ली कि हमने लर्निंग क्या सीखी। अब हम देखते हैं मॉक्स हमें कैसे अटेम्प्ट करने की चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीवाईक्यूज। एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अपनी 2001 अटेम्प्ट में 2019 में नहीं की थी, वो था पीवाईक्यूज मैंने किए थे जस्ट फॉर सॉल्विंग पर्पस। मैं कुछ सीख नहीं पा रही थी पीवाईक्यूज से। 2020 से मैंने जो किया वो अटेम्प्ट चेंज करके ये किया कि पीवाईक्यूज से मुझे क्या सीखना है। तो पीवाईक्यूज से जब मैंने सीखा तो मुझे समझ आया बहुत थीम्स रिपीट होती हैं। इकोनॉमिक्स की थीम रिपीट होती है, सीआरआर है, एसएलआर है, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, या मनी डियर मनी है, या टाइट मनी है, मतलब बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के आपको सवाल मिल जाएंगे। सेकेंडली, पॉलिटी में बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऑर्डिनेंस पे हो गया, जुडिशियल रिव्यू पे हो गया, फंडामेंटल राइट्स पे हो गया, ये इतने हॉट टॉपिक्स है कि हर साल सवाल आएंगे। तो आपको पता है जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे कि ये टॉपिक तो मुझे बाय हार्ट करने ही है, मतलब इनका कोई तोड़ नहीं है। आप इसी साल देख लीजिए आर्यभट्टा जो सवाल आया हिस्ट्री में आपका इस बार की, आर्यभट्टा क्या है, ये पीवाईक्यू है, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू से आपको ये सीखना है कि
सही आंसर तो आपने देख लिया कि ये है, पर जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? तो आप गूगल कीजिए, उन्हें कहीं पे नोट मेकिंग कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगले ही साल में आपके वही जो ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चंस की तरह बन के आ जाए। तो पीवाईक्यू से ये 2 चीजें एनालाइज करनी है, पैटर्न एनालाइज करना है एंड क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से एनालाइज करना है। थर्डली लैंग्वेज पे ध्यान देना है, यूपीएससी किस तरह से चीजें लिखती है, तो वो लैंग्वेज पे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो कोचिंग वाले जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, दे आर वेरी डिफरेंट। एंड हमें तो मेरा ये कोशिश रहती थी कि एटलीस्ट 1 महीना या 1.5 महीना, 1 महीना पहले एटलीस्ट मैं सिर्फ पीवाईक्यूज पे ही फोकस करती थी। एंड उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल कोचिंग्स के मैं फुल लेंथ क्वेश्चंस किया करती थी। नेक्स्ट मॉक्स का क्या करना है? तो अगेन एक सब्जेक्ट, एक कोचिंग के आपको वो लेने हैं, क्या कहते हैं, सेक्शनल लेने हैं। मैं विजन के ले लिया करती थी एंड मल्टीपल कोचिंग से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फोरम ले लीजिए, नेक्स्ट आईएएस ले लीजिए, वाजीरामन रवि ले लीजिए, वाजीराव रेड्डी ले लीजिए, शंकर आईएएस ले लीजिए, आईएएस बाबा ले लीजिए, किसी किसी के 2-2 3-3 क्वेश्चन पेपर उठा के एंड मेक श्योर कि आप कुछ पेपर ऐसे थे जिसमें आप ओएमआर फिल कर रहे हैं, क्योंकि होगा आपके साथ ऐसा कि हो सकता है आप गलत ओएमआर फिल कर दिए और एक एक क्वेश्चन की वैल्यू आपको पता है कितनी ज्यादा होती है। तो आप घर पे जब ओएमआर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में गलती करने के आपके जो चांसेस है, टेंडेंसी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मेक श्योर यू डू दैट। तो ये हमारा प्रीलिम्स हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सीसैट के लिए क्या करना है। सीसैट के लिए, क्योंकि मैंने 2023 का सीसैट फेल किया था, मैंने 2024 में बैठ के सीसैट की तैयारी की थी। सिंस 2023 में मैंने आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर लिया था, तो मेरा काफी हद तक सीसैट प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि उसका जो मैथ्स होता है वो काफी अलग लेवल का आता है, तो वो मेरा हो गया था प्रिपेयर। बट स्टिल मैंने बैठ के फिर से 5 साल के पेपर लगाए सीसैट के, और मैंने देखा मैं किन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रही हूँ, किन टॉपिक के मैं क्वेश्चंस मैथ्स के नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। तो मैंने वो अपने एरियाज आइडेंटिफाई किए कि मुझसे पीएनसी के सवाल शायद उतने अच्छे से नहीं हो रही है, नंबर सिस्टम के मुझे कुछ ट्रिक्स नहीं पता है या रूल्स नहीं पता है, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो आई मेड श्योर कि मैंने वो टॉपिक्स लिखे एंड गूगल पे नॉर्मल आप यूट्यूब पे डालेंगे वो टॉपिक्स, आपको आराम से वो सेम क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे और आपको तरीका भी मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये आपको अपनी तरफ से खुद से मेहनत करनी पड़ेगी कि सीसैट के लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। फ्री सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, बट मेक श्योर पहले आप आइडेंटिफाई करें। तो मेरा सीसैट का अप्रोच ये रहता था, मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों अटेम्प्ट किया करती थी। तो कॉम्प्रीहेंशन पे आई हैड अ गुड कमांड। अगर मैं 27 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ तो 2 या 3 गलत होते थे, उससे ज्यादा नहीं होते थे। पर मैथ्स का खेल थोड़ा सा बिगड़ गया था 2023 में, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा डर लगने लग गया था। बीइंग एन इंजीनियर मुझे फिर भी डर लगने लग गया था मैथ्स का, तो मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाई की थी सीसैट की एंड देन आई अप्रोच द क्वेश्चन पेपर। अगेन सीसैट से मैं फेल हुई हूँ, 65 मैंने स्कोर किया था। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, डू नॉट टेक सीसैट लाइटली। मतलब, और जब आपसे सवाल नहीं बन रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और आप घड़ी को देखते हैं कि टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उस प्रेशर में आप और नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि घर पे जब आप हैं तो अच्छे से सीसैट प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब 5 साल के पेपर अच्छे से कर लीजिए, और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उनको प्लीज अच्छे से कीजिएगा। सो ऐसे जब आप करेंगे प्रिपरेशन होलिस्टिकली, तो आपका प्रीलिम्स का जो सीसैट और जीएस का पार्ट है, आई थिंक मोर और लेस वो कवर हो जाएगा। बाकी मैं कमेंट सेक्शन में देख लूंगी, अगर आपको कोई और डाउट्स हैं प्रीलिम स्पेसिफिक तो वो हम एड्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें मैंने 3 में प्रीलिम्स फेल किया है एंड 3 में इंटरव्यू दिया है। तो मेंस मेरे लिए उतना हर्डल था नहीं कभी। बट अगेन मैं लिस्ट में नहीं आई, तो मेंस एग्जाम मेरे लिए इसलिए हर्डल था कि मैं सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स ला नहीं पा रही थी एंड स्पीड मेरी नहीं थी। तो पहले अटेम्प्ट में मेरे से पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब मैंने जीएस का 100 नंबर का पेपर छोड़ दिया था मतलब छूट गया था मुझसे, क्योंकि मुझसे स्पीड ही नहीं बन पा रही थी। लकीली उस साल मेरे एसए में बहुत नंबर थे, तो इस वजह से मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था एंड बट आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, मैं पेपर फिनिश कर पाई, बट अगेन सोशियोलॉजी में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इंटरव्यू में मेरे स्कोर डिप कर गया, तो मैं वो अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। लकीली इस साल मेरा सब कुछ एवरेज आउट हो गया, तो इस वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तो मेंस के लिए हमें क्या करना है, पहले तो शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है। बट शॉर्ट नोट्स पे जाने से पहले सबसे पहला काम, मुझे हमेशा लगता है प्लानिंग पे थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए, और मैं प्लानिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो मेंस के लिए आपको अच्छे से प्लानिंग करनी है। कैसे करनी है, पीवाईक्यूज की बुकलेट उठा लीजिए, फोरम की एक रेड कलर की किताब आती है, कोई भी कोचिंग की ले लीजिए, मैंने फोरम की ली थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज दे रखे हैं। जब आप बार बार उन पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहा है या ऑल्टरनेट साल रिपीट हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी
या नार्को टेररिज्म, ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो रहा है। तो सिक्योरिटी वाला पार्ट में ये हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखेंगे कि जो बॉडीज न्यूज में थी, या वो बिम्स्टेक है, I2U2 है, या फिर सार्क है, कोई भी नई बॉडी है जो न्यूज में चल रही है पिछले 2 साल से, वो पूछ ही लेते हैं। तो पीवाईक्यू से आपको ये समझ आएगा कि आप टारगेटेड मेहनत कर पाएंगे। और जब आप टारगेटेड मेहनत करेंगे ना कि हाँ पीवाईक्यूज मैंने देख लिया कि हाँ इस साल ये चीजें इंपॉर्टेंट चल रही थी, यूपीएससी ने तो इसका सवाल पूछा है, तो इससे होगा जब आप अपनी मेंस 365 उठाएंगे पढ़ने के लिए, तो आपको एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे इस तरह से पढ़ाई करके, तो आपको लगेगा 12-13 सवाल तो यार ये तो मैंने ऑलरेडी गेस कर लिया था कि ये सवाल तो आने ही है। तो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर चुके हैं कहीं ना कहीं। जैसे गगनयान हो गया, अगर हम देखें कि जैसे अब वो काफी चल रहा है, तो हमें लगता है हाँ अगले 1-2 साल में गगनयान पे कोई सवाल आएगा ही आएगा, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर लीजिए उसको। तो पीवाईक्यू से आपको ये समझ आएगा कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कि हाँ हर साल पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन आता ही है, तो दोनों को प्रिपेयर कर लीजिए। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, ये सवाल ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर ऑल्टरनेट ईयर आ ही रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है। मैं बहुत डिलिजेंटली पीवाईक्यू फॉलो करती थी, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, क्योंकि मुझे लगता है वही एक ब्लूप्रिंट है जिसको देख के आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, या वो डायरेक्शन मिलेगी आपको। तो पीवाईक्यूज आपको करना है। अगेन, अब पीवाईक्यूज के बाद नोट्स कैसे बनाया जाए, सबका ये सवाल रहता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए, क्योंकि मेंस के सिलेबस का तो इतना सादा टॉपिक्स है। तो आई वुड सजेस्ट कि टॉपिक उठाइए, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। अब उसका जब आप वो रेड बुकलेट उठाएंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने 5-4 डिमेंशंस पे उस पे सवाल पूछ रखे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोल्यूशंस क्या हैं, क्या पंचायती राज एसडीजीज को हेल्प कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। तो जब आप वो पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा पंचायती राज पे मुझे इन 4 डिमेंशंस पे तो मेरे पास आंसर होना ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो मोर और लेस मैचिंग आपको मिल जाएगा सवाल वहां पे। तो पंचायती राज आपका डन है। तो पीवाईक्यूज आपको हेल्प करेंगे नोट मेकिंग में भी, बट अगेन आपके पास हर टॉपिक का नोट होना चाहिए। एंड व्हेन आई से हर टॉपिक का नोट, तो उसमें इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में होना चाहिए। मैंने ये नोट्स कहाँ से बनाए थे, कुछ मैंने खुद गूगल करके बनाए थे कि मैंने कोई टॉपिक सर्च कर लिया, वहां से कर लिया। सेकेंडली, हम जब इनिशियली हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी तो हम 4-5-6-7 दोस्त थे, तो हम लोग क्या करते थे, सब लोग साथ में वीडियो कॉल पे टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे कि तुम आज हम इकोनॉमिक्स करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये करके ले आना। किसी को बोलेंगे कि अच्छा आप एग्रीकल्चर के ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करके लाना। एंड सब लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे को अपने अपने आंसर्स दे देते थे कि मेरे ये 2 क्वेश्चन है, मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे, आपने क्या लिखे। तो इससे क्या हमारी जो मेहनत थी वो बट गई थी। लेकिन वही अगेन, आप ये ग्रुप बनाएंगे सिंसियर लोगों के साथ। मुझे लगता है पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं क्योंकि घर से तैयारी कर रही थी तो ऑनलाइन ही मैं पढ़ाई करती थी बहुत बार अपने दोस्तों के साथ। जैसे नहीं मन कर रहा लेकिन दिख रहा है कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है मेरे साथ, तो वो मोटिवेशन आपको अपने आप आ जाता है। तो ऐसे हम लोगों ने पीवाईक्यूज खत्म करने की कोशिश की थी। थर्ड अटेम्प्ट ये रह सकती है, जैसे अपने 2022 के अटेम्प्ट में मैंने शून्य आईएएस की किताब ली थी। बहुत डिलीजेंटली नहीं की थी, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जिनके मेरे को अच्छे से नोट्स मिल नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था मैं डायमेंशन नहीं उतने अच्छे से सोच पा रही हूँ, तो वो शून्य आईएएस की किताब से मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। अगेन, आप इन्हें अपने हाथ से लिखिए, आपको वो किताब मिलेगी, आपको लगेगा इसमें तो सब लिखा हुआ है, मैं इसी को रेफर कर लेती हूँ। बट नहीं, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, तो जब हम वो सवाल देखते हैं तो हमें याद रहता है हाँ ये सवाल तो मैंने खुद लिखा हुआ है, या इसका था मेरे नोट्स में है ये चीज अवेलेबल। तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो ऐसे करके आपको अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाने इन एवरी सब्जेक्ट। हिस्ट्री में आई थिंक मैंने नहीं बनाए थे नोट्स, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सबके लिए नोट, जीएस 2 और 3 के लिए तो बहुत एक्सटेंसिवली नोट्स बनाए थे मैंने। हम पेपर वाइज जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी उसके लिए। और आंसर, हाँ, अब ये भी देख लेते हैं कि मैंने जैसे जो मैंने बताया अपनी फर्स्ट मेंस में मैंने क्या सीखा था कि मैं 100 नंबर का पेपर मेरा छूट गया था। तो इससे क्या लर्निंग मिली, स्पीड नहीं है मेरे पास। और स्पीड क्यों नहीं है, क्योंकि या तो रिवीजन अच्छे से नहीं करी है, या लिखने की स्पीड, 2 चीजें होती हैं। अगर आप पूरा आंसर नहीं कर पा रहे, या तो आप सोच नहीं पा रहे उतना जल्दी, या आपने पढ़ाई नहीं है तो आपको सोचने में टाइम लग रहा है वहां आंसर लिखने में। तो अगर आप सोच के लिखेंगे तो आप 7 मिनट में एक आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो 2 ही चीजें हैं इसके लिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 7 मिनट मतलब 7 मिनट, आप उसको 6:50 पे खत्म कर दीजिए। जो आपका 10 नंबर का सवाल है, जो 15 नंबर का सवाल है, आपको उसमें 10 मिनट में खत्म करना ही है एट एनी कॉस्ट। और ये कब हो पाएगा, जब आपने अपनी तैयारी पीवाईक्यू के हिसाब से करी है। तो जब आपको पता चलेगा कि 12-13 सवाल तो मेरे रिपीटेड है, तो वो आपको उन 12-13 सवालों में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ उन 6-7 सवालों में सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है वो 12-13 सवाल आप 7 मिनट की जगह 6 मिनट में कंप्लीट करें, एंड 15 मार्क का क्वेश्चन आप 10 मिनट की जगह 9.5 मिनट में। तो जो आपके 10-10, 15-15 सेकंड्स बचेंगे उनको आप सोचने में यूज करेंगे, जो आपके बाकी के 6-7 सवाल हैं। तो ये वाली चीज करनी है अगेन, और प्रैक्टिस बहुत करनी है। मेंस के आंसर्स लिखने हैं आपको, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, यू हैव
टू आपको यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। मैं पैराग्राफ्स में बिलीव नहीं करती, बीइंग एन इंजीनियर ऑल्सो मेरे को पॉइंट फॉर्मेट बहुत पसंद है। मैं वेन डायग्राम बना दूंगी, मैं हब्स एंड स्कूप्स डायग्राम बना दूंगी, कितना प्रेजेंटेबल मैं अपने पेपर को बना सकती हूँ मैं उतना बनाने की कोशिश करती हूँ, डेटा डालती हूँ, डायग्राम्स डालती हूँ, सब हेडिंग्स डालती हूँ। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, सब पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। बहुत ज्यादा सवाल, अगर सवाल में 3 चीजें पूछी हुई है तो आपको उन 3 चीजों को उन 3 तरीकों से ही लिखना है। अगर उसने पहले सोल्यूशन लिखा है, मांगा है, फिर रिकमेंडेशन मांगे, फिर इश्यूज मांगे, सुनने में बहुत एंटी लॉजिकल लग रहे हैं, पर आप उसको ऐसे ही लिखें, क्योंकि एग्जामिनर उसको ऐसे ही देखेगा, अच्छा इसने सोल्यूशन लिखे हैं, रिकमेंडेशंस लिखे हैं, प्रॉब्लम्स लिखे हैं, तो वो आप कीजिएगा, वही फॉर्मेट में आपको उसको फॉलो करना है। देन पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करना है, वैल्यू एडिशंस करने हैं, जजमेंट्स हो गया, कमिटीज हो गई, जजमेंट्स जैसे राइट टू प्राइवेसी के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, फिर सेडेशन पे बहुत ज्यादा जजमेंट्स हैं या रिकमेंडेशंस हैं, फिर इकोनॉमी में एसडीजीज हैं, या फिर नीति आयोग ने कुछ बोला है, या डब्ल्यूएचओ ने कुछ बोला है, या आईएमएफ ने कुछ बोला है, वर्ल्ड बैंक ने कुछ बोला है, सब लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के बारे में बोलते ही हैं। तो जब आप नोट्स में उसको एक लाइन की तरह लिख लेंगे और आप बार बार अपने नोट्स रिवाइज करेंगे तो वो इंटरनलाइज हो जाएगा आपका कि हाँ ये मुझे ऐसे ही करना है। तो वो करने की बहुत ज्यादा, एसडीजीज को बाय हार्ट कर लीजिए। एंड कंक्लूजन, चाहे आपको बहुत फैंसी ना लग रहा हो, चाहे आप यही लिख रहे हैं देयरफॉर, और जो आपके क्वेश्चन में पूछा है दिस 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 दिस, राइट इट, बट एग्जामिनर को लगेगा कि आपने एक लूप कंप्लीट किया है क्वेश्चन का। कोई भी क्वेश्चन को आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो एग्जामिनर को एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाएगा कि इसने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आप सोचिए आप पॉइंट्स लिखते हैं और पेज खत्म हो गया, पीछे कुछ नहीं है, तो लगेगा अरे ये क्या, मतलब आधा अधूरा सा आंसर है। तो वो करने की जरूरत है।